A was for adolescent health, so a lot of strategies come under that. You want to prioritize their nutrition, their mental health. We all have been adolescents at one time. We all have been crazy. So mental health, substance misuse, sexual and reproductive health, non-communicable diseases, injuries and violence. So you want to kind of really educate them and prevent any mishappening. Approach is peer-to-peer approach. Peer-to-peer approach really means कि आप उनको बता रहे हो, वो उनको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं. That's the peer-to-peer approach. And components, you want to communicate with them, counsel them, call them to the clinic. Communities में थोड़ा और, I think there's something called what's that called, बाल मंडल्स or something, जहाँ पे वो ऐसे groups करते हैं, you know, about good hygiene and nutrition and all that. So, जननी सुरक्षा योजना, this is actually a lot of OBS. बस इसमें ये है कि we wanted to improve the institutional delivery percentage in India, and this is a very funny story actually. I don't know who told us this, but पहले ये understanding थी कि जो बच्चे hospital में deliver होते हैं उनकी death हो जाती है, and so it was seen that the death rates in the institution were more than those in the home, and a lot of people used to think कि बच्चे घर पे ही पैदा करने चाहिए. बट देन पता चला कि इसलिए हो रहा था क्योंकि जो बच्चे होम में डिलीवर हो मतलब नहीं हो पा रहे थे और कॉम्प्लिकेट हो रहे थे वही इंस्टीट्यूशन में आ रहे थे, एंड नेचुरली अ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी वाज मोर लाइकली टू हैव अ फेटेलिटी, एंड दैट्स व्हाई द डेथ रेट्स वर मोर इन द इंस्टीट्यूशन. सो दे came up with these योजनाs ताकि होम डिलीवरी को कम से कम किया जाए और ये कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज किया जाए, बिकॉज दे मे हैव अ वेरी लार्ज बेयरिंग ऑन neonatal mortality and even maternal mortality. There may be neonatal and obstetric complications. So women who are more than 20 years of age and have only 2 live children इसीलिए बोला है क्योंकि अगर एक लाइव चाइल्ड हुआ और दूसरा स्टिल बर्थ हो गया और फिर तीसरा लाइव बर्थ हुआ तो इट्स स्टिल 2 लाइव चिल्ड्रन, राइट? सो यू स्टिल वांट टू गिव देम दिस कैश असिस्टेंस. इसमें बेसिकली कैश असिस्टेंस दिया जाता है उन फीमेल्स को जो इंस्टीट्यूशन में आके डिलीवर करती हैं, एंड दिस इज टू रिड्यूस द NMR एंड द MMR, राइट? सो दैट्स द बेसिस. और आशा को भी इसीलिए कैश असिस्टेंस दिया जाता है कि वो और से और फीमेल्स को मोबिलाइज कर पाए इंस्टीट्यूशन के लिए. जननी शिशु सुरक्षा में सेम चीज़ है कि 30 डेज के बच्चे को अगर फॉर सम रीज़न NICU में एडमिट करना पड़ा है या IPD एडमिशन लगा है तो उसका सारा ट्रीटमेंट विल बी फॉर फ्री, ठीक है? ताकि अगेन यू नो पेरेंट्स डोंट टेक अवे NMR. Good afternoon everyone. Today's class is CSOM. Chronic means more than 3 months. Any inflammation of the middle ear. Otitis means inflammation of ear, and media means middle ear. Middle ear inflammation of more than 3 months is chronic otitis media. It is 2 types. Safe and unsafe, tubotympanic and unsafe ear. A stage of ear disease ongoing, chronic infection of the middle ear without an intact tympanic membrane. अगर intact tympanic membrane है तो inflammation होगा नहीं. Chronic inflammation of the middle ear and mastoid cavity. CSO means it's inflammation of middle ear plus mastoid antrum. Characteristic presentation: chronic or persistent otorrhea over 2 to 6 weeks, though a perforated tympanic membrane. Otitis media means any inflammation of the middle ear mucosa. It is 2 types. Tubotympanic, it is safe and benign, involves anterior-inferior part of middle ear cleft. Anterior-inferior quadrant of tympanic membrane is safe, but posterior-superior and attic lesion is unsafe.
It is tubotympanic associated with permanent central perforation. It is two types, wet and dry perforation. Presence of inflammation and mucopurulent discharge, it means it's a wet perforation and active disease. And absence of inflammation and mucopurulent discharge, it means inactive disease and dry perforation. We can do surgery in only dry perforations. We avoid surgery in wet ear. Eticoenteral type, it's also called unsafe and dangerous. Chronic pyogenic infection of middle ear cleft lasting for more than 3 months with cholestotoma and granulations. Involves atic or posterior superior quadrant of pars tensa. या तो एटिक में डिजीज होगी या पोस्टीरियर सुपीरियर या मार्जिनल परफोरेशन होगा, उसमें ये अनसेफ ईयर होता, अनसेफ डिजीज होती है. Higher chances of complication are in unsafe ear. Cholestotoma is defined as three-dimensional sac lined by matrix of keratinizing tissue and contains desquamated keratin debris which grows at the expense of surrounding bone. Its name suggests cholestotoma. According to its name, we can say that it's cholesterol or a tumor, but in this cholestotoma there is not a tumor and has no cholesterol. बेटर टर्म इज एपिडर्मोइसिस, क्योंकि न तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और न इसमें कोई ट्यूमर होता है. It is three-dimensional epidermal and connective tissue structure formed due to accumulation of exfoliated keratin in middle ear cleft. It has the capacity for progressive independent growth at the expense of underlying bone. Histologically, it's a cystic content composed of fully differentiated anucleate keratin squamous. जो बाहर की लेयर होती है सिस्टिक एरिया, उसकी लेयर होती है वो डिफरेंशिएटेड एन्यूक्लिएट केरेटिन स्क्वेमस सेल्स होती है. मैट्रिक्स कंटेन्स केरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग ए सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड पेरीमेट्रिक्स नोन एज लेमिना प्रोपरिया. Peripheral part of cholestotoma consists of granulation tissue and cholesterol granule. This layer is in contact with the bone. It is the granulation tissue which release enzymes that cause bone destruction. This part shows the bony area, and this is fibrous layer, fibrous stroma, and this is matrix, stratified squamous epithelium, this one. And in the inner layer, that is keratin mass. This is all picture of cholestotoma. अंदर वाइट टिश्यूज होता है, केराटिन मास होता है. धीरे धीरे ये बोन इरोडिंग प्रॉपर्टीज होती है इसकी. ये बोन जो पेरिफेरल एरिया होता है बोन्स का, इसको पूरा डैमेज कर देते हैं. तो मेस्टोइड जो बोन्स होती है उसको धीरे धीरे लेब्रिंथ को भी डैमेज करती है, फेशियल नर्व को भी डैमेज कर देती है, और जो पिट्रस बोन होती है उसको भी डैमेज कर देती है. पिट्रस बोन को डैमेज होते ही ये मिडिल क्रेनियल फोसा में पहुंच जाता है, और पोस्टीरियरली ये डैमेज होता है तो सेरिबेलम तक पहुंच जाता है. लेब्रिंथ को डैमेज करते ही ये सेमीसर्कुलर कैनाल, और इनको डैमेज करते ही ये वर्टाइगो और लेब्रिंथ वाली प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है. Causes of bone destruction: hyperimmune decalcification, osteoclastic bone resorption, acid phosphatase, collagenase, acid protease, proteolytic enzymes, leukotrienes, cytokines, ये सारी बोन को रिजोल्व करने में हेल्प करती है. एक प्रेशर नेक्रोसिस, इस कोलेस्टोटोमा जैसे जैसे कलेक्ट होगा ये प्रेशर बोन को प्रेशर देगा, जिससे धीरे धीरे ये बोन डिस्ट्रक्शन होता रहेगा.
एक बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी बोन को डैमेज करते रहते। टाइप्स ऑफ कोलेस्टोटोमा, इट्स इज congenital cholesteroma, primary acquired cholesteroma, secondary acquired cholesteroma and tertiary acquired cholesteroma. प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा रिट्रैक्शन पॉकेट बनती है, यूस्टेशियन ट्यूब होती है, वो ब्लॉक हुई, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होने से नेगेटिव प्रेशर, मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर हुआ तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन धीरे धीरे रिट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसमें ये स्क्वेमस एपिथेलियम कलेक्ट होती है, कोलेस्टोटोमा बन जाता है। ऐसे ही एटिक के अंदर भी ये होता है, नेगेटिव प्रेशर से धीरे धीरे रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगी, कोलेस्टोटोमा इकट्ठा होता जाएगा और ये बोन को डैमेज करते जाएगा। एक होता है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, ये भी इसमें कोलेस्टोटोमा होता है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ये 3-4 थ्योरीज हैं जिसके अनुसार ये रिट्रैक्शन पॉकेट में कोलेस्टोटोमा डेवलप होता है। सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एंड एपिथेलियल माइग्रेशंस। टर्सरी एक्वायर्ड, पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट टिम्पेनोप्लास्टी। पोस्ट ट्रॉमेटिक में कैसे ये कोलेस्टोटोमा डेवलप होगा? परफोरेशन हुआ, परफोरेशन से जो एपिथेलियल लेयर्स है धीरे धीरे अंदर पहुंच गई, अंदर जाके धीरे धीरे ये कोलेस्टोटोमा बनाएगी, क्योंकि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है जैसे ही अंदर जाएगी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जाएगी और ये बोन को और इनको इरोड करती जाएगी। ऐसे ही जैसे पोस्ट टिम्पेनोप्लास्टी में क्या होगा, जैसे रेजिडुअल परफोरेशन रह गया, रेजिडुअल परफोरेशन होने से धीरे धीरे वो जो लेयर होती है एपिथेलियल लेयर धीरे धीरे अंदर जाके मिडिल ईयर के अंदर जाएगी, धीरे धीरे कलेक्ट होगा, डेब्रीज कलेक्ट होकर धीरे धीरे कोलेस्टोटोमा बन जाएगा। कॉन्जिनाइटल कोलेस्टोटोमा डेफिनेशन, वाइट मास मीडियल टू नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होगी, सिर्फ वाइट मास दिखेगा, कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं होगी, ना कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, न पेन की हिस्ट्री होगी। नॉर्मल पार्स फ्लैसिडा एंड पार्स टेंसा, न तो इसमें पार्स फ्लैसिडा भी नॉर्मल होगा, टेंसा भी नॉर्मल होगा। नो प्रियर हिस्ट्री ऑफ ओटोरिया और परफोरेशन, नो प्रियर ओटोलॉजिकल प्रोसीजर्स, कोई सर्जरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होगी। प्रियर बाउट्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया नोट ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूजन, इस तरह का ओटाइटिस मीडिया या इसकी भी हिस्ट्री नहीं होगी। साइट्स ऑफ कॉन्जेनाइटल कोलेस्टोटोमा, कहाँ कहाँ ये डेवलप हो सकता है? सेरिबोलोपोंटाइन ओंगल, पिट्रस अपेक्स, मिडिल ईयर क्लेफ्ट, जुगुलर फोसा। थ्योरीज ऑफ कॉन्जेनाइटल कोलेस्टोटोमा, एपिथेलियल सेल रेस्ट, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया थ्योरी, एपिडर्मोइड फॉर्मेशन थ्योरी, इन्वेजिनेशन थ्योरी। जो एपिथेलियल सेल्स है कॉन्जेनाइटली अगर रह गई अंदर, वो धीरे धीरे वो डेवलप होकर कोलेस्टोटोमा बन जाता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे या कहीं भी डेवलप होके वो वाइट मास सा दिख जाएगा। ये तो आपके ये कोलेस्टोटोमा दिख रहा है वाइट टीएम के पीछे, ये नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये, और ये टीएम के पीछे कोलेस्टोटोमा। एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा, यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उससे मिडिल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और नेगेटिव प्रेशर से मिडिल ईयर एफ्यूजन होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उससे मेटाप्लेजिया हो, मिडिल ईयर म्यूकोजा धीरे धीरे मेटाप्लेजिया होके और ये इसको रिट्रैक्शन पॉकेट या ये कोलेस्टोटोमा धीरे धीरे बना देती है। प्रोलिफरेशन ऑफ बेजल लेयर, प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा विदाउट प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा विथ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। सेकेंडरी जो कोलेस्टोटोमा डेवलप होता है या तो परफोरेशन है ट्रोमेटिक या जो भी पोस्ट सर्जरी, उसमें मेटाप्लेजिया मिडिल ईयर म्यूकोजा मेटाप्लेजिया होकर धीरे धीरे कोलेस्टोमा बना देती है।
रिट्रैक्शन पॉकेट एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगी तो उसमें धीरे धीरे कोलेस्टोटोमा डेवलप हो जाएगा। ये इटियोपैथोजेनेसिस है इसकी। रीजंस फॉर रिट्रैक्शन पॉकेट इन पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा इज थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है, एंटीरियरली थिक होता है। रेट ऑफ माइग्रेशन एपिथेलियम इज हाईएस्ट एट द पोस्टीरियर सुपीरियर कैनाल वॉल। पुअर वेंटिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर मेसोटिम्पेनम ड्यू टू द टू मच क्राउडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओसिकल्स। पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में मेलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों होती है, तो ये और क्राउडेड होता है और इसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, जिससे ये वीक पॉइंट होता है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन द पोस्टीरियर सुपीरियर मेसोटिम्पेनम, relatively large and deep posterior pouch and proximity of the एडिटस। जो एडिटस होता है वो काफ़ी स्पेस होता है, जिससे ये नेगेटिव प्रेशर से धीरे धीरे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये पार्स फ्लैसिडा पोस्टीरियरली रिप्रेस होके धीरे धीरे कोलेस्टोटोमा बनाती है। ये मेलियस है, ये इनकस है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसमें ये हाइपरप्लेजिया शो कर रखा है। हाइपरप्लेजिया ऑफ बेसल सेल्स इन एपिथेलियल लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड देयर इन्वेजन ऑफ सब एपिथेलियल टिश्यू। अब ये धीरे धीरे इन्वेजन होके इधर चला गया, ये कैविटी टाइप बन गई, इसमें धीरे धीरे एपिथेलियल लेयर्स इकट्ठी होती जाती है। The cause of hyperplasia is subclinical inflammation in the attic। ये एटिक वाला रीजन है, ये यहाँ तक है, ये पार्स टेंसा वाला एरिया, ये ऊपर वाला एटिक रीजन है। प्राइमरी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिडिल ईयर म्यूकोजा इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम ड्यू टू इन्फेक्शन विदाउट EM परफोरेशन। मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन से भी धीरे धीरे मेटाप्लेजिया होके ये कोलेस्टोटोमा बन सकता है। सेकेंडरी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिडिल ईयर म्यूकोजा इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम ड्यू टू इन्फेक्शन वाया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन से धीरे धीरे ये अंदर तक ये इन्फेक्शन होके और ये कोलेस्टोमा डेवलप हो जाता है। ये पार्स फ्लैसिडा वाला पार्ट है, ये जो हेड ऑफ मेलियस एंड इनकस रेस्ट इन द एटिक रीजन। दिस वन इज एटिक रीजन। माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियम वाया टिम्पेनिक परफोरेशन इनटू मिडिल ईयर। ये परफोरेशन के थ्रू ये एपिथेलियम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के मिडिल ईयर के अंदर जाके और धीरे धीरे ये ग्रोथ करती है। टर्सरी पोस्ट ट्रॉमेटिक कोलेस्टोमा, टर्सरी कोलेस्टोमा इसका मैकेनिज्म है एपिथेलियल एंट्रैपमेंट इन फ्रैक्चर लाइन, इन ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम थ्रू फ्रैक्चर लाइन, traumatic implantation of epithelium into middle ear, entrapment of epithelium medial to external auditory canal stenosis। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का स्टेनोसिस होता है, उसमें भी ये जो माइग्रेशन होता है एपिथेलियल लेयर्स का वो बाहर जा नहीं पाता, धीरे धीरे अंदर कलेक्ट होता जाता, अंदर कलेक्ट होते होते ये कोलेस्टोटोमा डेवलप हो जाता। सेड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्स टेंसा रिट्रैक्शन, इसमें 4 टाइप्स ऑफ रिट्रैक्शन है। ये नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये एटिक रीजन है, दिस वन, ये मेलियस है, ये हैंडल ऑफ मेलियस अम्बो, एंड ये इनकस है,
incus का long process, and head of stapes, anterior crus, posterior crus, stapes, और this one is foot plate. Stage first retraction. ये रिट्रैक्शन है पार्स टेंसा का, ये यहाँ तक, ये एटिक रीजन इसके ऊपर होता है, ये दिस वन, ये हल्का सा ये रिट्रैक्शन पॉकेट बना हुआ, इट्स स्टेज फर्स्ट रिट्रैक्शन, एंड दिस वन इज स्टेज सेकेंड, दिस वन, and this one is stage third retraction pocket, and stage fourth retraction. Grade first retraction. Grade first retraction में क्या होता है? Prominent annulus. This one is annulus. What is annulus? Anyone? पार्स फ्लैसिडा का जो लेटरल पार्ट होता है सबसे, जिसमें फाइबर्स लेयर और ये होते हैं, ये पार्स टेंसा और ये एन्युलस है। यहाँ तक ये जब भी सर्जरी करते हैं इसको एन्युलस को उठाते हैं, एन्युलस को उठते ही ये पूरा टीएम उड़ जाता है। जब भी लिफ्ट करेंगे ना मिडिल ईयर में जाने के लिए, इस एन्युलस के थ्रू जाते हैं, ये एन्युलस के इस साइड से परफोरेट करके मिडिल ईयर में जाएंगे। तो ग्रेड फर्स्ट रिट्रैक्शन में क्या होगा? एक तो प्रोमिनेंट एन्युलस, ये इसमें क्लियर कट दिख रहा है एन्युलस, दिस वन दिख रहा है। कोन ऑफ लाइट एब्सेंट, कोन ऑफ लाइट नहीं होगा इसमें। प्रोमिनेंट लेटरल प्रोसेस, दिस वन प्रोमिनेंट लेटरल प्रोसेस। हैंडल ऑफ मेलियस मीडियलाइज्ड, जो ये हैंडल ऑफ मेलियस है ये मीडियली पुश्ड हो रखा है, अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हो रहा है। मेलियर फोल्ड सिकल शेप्ड, ये ऊपर मेलियर फोल्ड होते हैं, ये इस लेटरल प्रोसेस से। ग्रेड सेकेंड रिट्रैक्शन, ये दिख रहा है ग्रेड रिट्रैक्शन, ये दिस वन, दिस वन, ये मेलियस है। ग्रेड थर्ड रिट्रैक्शन, tympanic membrane touches the promontory atelectasis but mobile on valsalva maneuver। ये पूरा रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, दिस वन, इसको एटिलेक्टेसिस भी बोलते हैं। वाल्सेल्वा मैन्यूवर करेंगे तो इसके मूवमेंट होंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के, ग्रेड थर्ड में। ग्रेड फोर्थ में इसके मूवमेंट नहीं होंगे, ये बिल्कुल चिपक जाएगी मिडिल। अब इसमें ये जो है ये प्रोमोन्ट्री है, दिस वन। कोक्लिया होता है, कोक्लिया का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको प्रोमोन्ट्री बोलते हैं, दिस वन। ये आपकी स्टेपीज है, ये मेलियस है, ये लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, ये इनकस का लॉन्ग प्रोसेस है, ये स्टेपिडियस टेंडन है, दिस वन। स्टेपिडियस टेंडन इंसर्टेड इनटू द नेक ऑफ स्टेपीज, ये नेक है यहाँ पे। ये आपकी ओवल विंडो है, स्टेपीज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रस्ट जहाँ पे फुट प्लेट पे रेस्ट होते हैं, दैट इज ओवल विंडो। ग्रेड फोर्थ रिट्रैक्शन, इसमें जो टीएम है बिल्कुल एडिरेंट है, आप वाल्सेल्वा मैन्यूवर होगा तो भी ये मूव नहीं करेगी।
TM firmly adherent to the promontory and immobile on Valsalva maneuver or sigillization. ये मेलियस है, हैंडल ऑफ मेलियस, ये लेटरल प्रोसेस है, एंड दिस वन इनकस लॉन्ग प्रोसेस, एंड ये पिरामिड है, सीधा पिरामिड, एंड दिस वन इज स्टेपिडियस टेंडन, एंड दिस इज promontory. And behind this is oval window, and this is round window. TOS classification of pars flaccida retraction. ये लेटरल प्रोसेस तक तो ये TM होती है, पार्स टेंसा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा ये पार्स फ्लैसिडा वाला होता है। इसमें ये नॉर्मल पार्स फ्लैसिडा है, इसमें टाइप 1 रिट्रैक्शन में हल्का सा रिट्रैक्शन है पार्स फ्लैसिडा का। टाइप 2 में ये यहाँ तक रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है यहाँ तक। टाइप 3 में ये मोर रिट्रैक्टेड पार्ट इन पार्स फ्लैसिडा, and type 4 में it goes inside this Bruscaz space, this one.